Hello students, I Harshita Parikh welcomes you again in my online study classes. I am back here with the chapter Chemical Kinetics. In previous lecture, we have discussed about what is chemical kinetics and something about the rate of reaction. This is second lecture of chemical kinetics and today I am again going to start the topic rate of reaction. Rate of reactions, type of the rate of reaction जिसमें इंस्टेंटेनियस रिएक्शन होगी और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होगी जिसको हम आज की क्लास में स्टडी करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक रेट ऑफ रिएक्शन. If we'll just talk about the rate of reaction, we know it very well that rate of reaction is the change in the concentration with respect to the time. Time के साथ में concentration में होने वाला जो change है वही आपके पास में होता है rate of reaction. Suppose that हम यहाँ कोई reaction लेते हैं जिसमें कि R is reactant convert into the P product है. हम इसके लिए अगर ROR की बात करें, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो दैट इज इक्वल्स टू द इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P, राइट. आई एम टॉकिंग विथ रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्ट है यार. प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो इंक्रीज होगा कॉन्सेंट्रेशन बिकॉज प्रोडक्ट हमेशा बनता है रिएक्शन में और रिएक्टेंट हमेशा जो है वो कम होता जाता है या कन्वर्ट होता जाता है इनटू द प्रोडक्ट. सो रेट ऑफ रिएक्शन इन द टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट इज द इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ टाइम. सेम एज we can determine the rate of reaction ROR in the terms of reactant here, that is decrease in concentration of reactant. रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन. ये जो रिएक्शन आपने दिया है इन विच R कन्वर्ट्स इनटू P, इसकी रेट इन दो तरह से जो है वो बताई जा सकती है, डिटरमाइन की जा सकती है. सपोज दैट if at time t1 concentration of reactant is R1 and concentration of product is P1 and at time T2 concentration of reactant R is R2 while the concentration of product P is P2. Suppose that, right? मैंने कंडीशन जो है वो ली है कि अगर मान लीजिए टाइम T1 है तो concentration R की R1 and the concentration of product is P1 while at the time T2 when the reaction occurs T2 टाइम पर उसका रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है R2 जबकि कॉन्सेंट्रेशन जो प्रोडक्ट का है वो हो जाता है P2. इन दिस केस देन इफ द सिचुएशन इज दिस तो आपके पास में होगा क्या देखिएगा. देन डेल T इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1, डेल R इज इक्वल्स टू R2 माइनस R1 while the del P is equals to P2 minus P1 here, right? Okay, del is the change in temperature, change in reactant, change in time. T is time here, not temperature. Temperature को capital T से जो है वो बताते हैं. Change in time, change in reactant, change in concentration of reactant and the change in concentration of product here, right? If
these are the values, these are the concentration at the time T1 and T2 respectively, then the del T will be T2 minus T1 while the del R is equals to R2 minus R1 and the del P is equals to P2 minus P1. Okay, so if we'll just talk about the rate of reaction in the terms of product, तो आपके पास में ROR क्या हो जाएगा, देखिएगा ROR rate of reaction is equals to minus del R upon del T, or it can be plus del P upon del T, right? This is the formula by which we can determine the rate. यही है वो फॉर्मूला जिससे आप रेट को जो है वो बता सकते हैं, रेट को जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं. Look at here, the negative and the positive sign. Negative and positive sign ये क्या शो कर रहा है? The negative sign shows the decrease in concentration of reactant R, while the positive sign shows increase in concentration of product P respectively, right? The negative and the positive sign shows the decrease and increase in reactant and the concentration of product respectively. ये हुआ ROR rate of reaction निकालने का तरीका किसी भी reaction के लिए. Now the next topic is types of the rate of reaction. There are two types of the rate of reaction and these are, एक हम बात करेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की जिसे हम लिखेंगे RAV, दैट इज R रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, राइट. दूसरा हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, R इंस्टेंटेनियस means the rate of reaction instantaneous, right? Instantaneous rate of reaction की हम बात करेंगे. चलिए फिलहाल हम इसके लिए कर्व की जो है वो बात करते हैं, इसके लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं. कीप वॉचिंग. चलिए इसी रिएक्शन के लिए वेयर रिएक्टेंट R कन्वर्ट्स इनटू P हम बात करते हैं ग्राफ की. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं. Yes, have a look. X in the y-axis respectively. At the y-axis I am taking time here, while at the y-axis I am taking concentration here. ये concentration ले लेते हैं हम, यहाँ हमने टाइम लिया है. चलिए फिलहाल मैं अगर बात करूँ फॉर रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट के लिए जो ग्राफ है वो किस तरह से आएगा. हमें पता है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है. दिस इज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. इसी को आप जो है वो क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं. इट मीन्स आपको यहाँ पे ग्राफ किसके बीच में प्लॉट करना है, बिटवीन द कॉन्सेंट्रेशन एंड टाइम रिस्पेक्टिवली, बिटवीन द कॉन्सेंट्रेशन एंड टाइम रिस्पेक्टिवली. हैव अ लुक हियर. इफ विल जस्ट टॉक अबाउट द इनिशियल कंडीशन, तो वहाँ पर आपके पास में जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है वो मैक्सिमम होता है. दिस इज द पॉइंट जहाँ पे कि रिएक्शन मान लीजिए स्टार्ट हो रही है, इनिशियल पॉइंट है ये. एट द इनिशियल स्टेट रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सबसे ज़्यादा है. विथ द टाइम रिएक्शन का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है. और एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे कि ये क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, इक्विलिब्रियम पे आ जाता है, या कह सकते हैं आप. So this is the graph between the concentration and the time for reactant. ये R की concentration को शो कर रहा है, concentration of R को शो कर रहा है. चलिए अगर हम यहाँ पे बात करें, देखिएगा there is decrease in the concentration with increase in the time. टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है concentration reactant की जो है वो कम होती जा रही है, और एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ पे कि इसकी concentration जो है वो equilibrium में आ गई है. चलिए यहाँ अगर बात किया जाए तो देखिएगा, फर्स्टली एट द इनिशियल कंडीशन देयर इज अ शार्प डिक्रीजमेंट इन द कॉन्सेंट्रेशन, राइट.
देखिए कॉन्सेंट्रेशन में शार्प डिक्रीजमेंट आ रहा है, एक पॉइंट पे जो है वो क्या हो जाएगा, ग्रेजुअल होगा, धीरे धीरे होगा, और एक कंडीशन ऐसी आएगी जहाँ पे कि ये इक्विलिब्रियम में आ गया है या स्टेबल हो गया है। नाउ द नेक्स्ट ग्राफ फॉर प्रोडक्ट on x-axis time, on y-axis I am taking concentration, and this is the graph for product. प्रोडक्ट के लिए अगर आप ग्राफ बनाएं तो देखिएगा, प्रोडक्ट के लिए आपके पास में जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, वो उल्टा बनेगा, ऑपोजिट बनेगा, बिकॉज एट द इनिशियल कंडीशन जहाँ आपके पास में स्टार्टिंग हो रही है किसी भी रिएक्शन की, वहाँ पे आपके पास में प्रोडक्ट जो है वो कैसा होता है, प्रोडक्ट आपके पास में जो है वो ज़ीरो होता है, राइट। इट मीन्स एट द इनिशियल पॉइंट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज ज़ीरो, हेयर ज़ीरो होगा। ओके, नाउ विथ टाइम देयर विल बी इंक्रीजमेंट in the concentration of product, ये आपके पास में concentration of product को जो है वो शो कर रहा है with increase in the time, टाइम इंक्रीज होते जा रहा है, concentration जो पहले ज़ीरो थी इट इंक्रीजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एक पॉइंट पे आने के बाद में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जो है वो क्या हो जा रहा है, स्टेबल हो जा रहा है, इसका कॉन्सेंट्रेशन रेगुलर अब इंक्रीज नहीं होगा, राइट। वी नो इट वेरी वेल, एट द इनिशियल कंडीशन प्रोडक्ट बहुत फास्ट बनता है, शार्प इंक्रीजमेंट, देयर इज शार्प इंक्रीजमेंट इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, साथ में फिर धीरे धीरे ग्रेजुअल हो जाता है और एक कंडीशन ऐसी आती है जहाँ पे ये इक्विलिब्रियम में चला जाता है। Okay, so this is the graphical representation for reactant and product as well between the concentration and the time, मतलब कि ये rate of reaction को बता रहे हैं। These are the graphs which shows the rate of reaction here, because rate of reaction concentration with time वही है, concentration with time rate of reaction है reactant के लिए और product के लिए graphical representation। Now if we want to make the graph in a single, दोनों के लिए एक ही जगह पर अगर आप ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, वो कुछ इस तरह से बनेगा। हैव अ लुक, x axis, y axis, time, on x axis, concentration on y axis, for product increase करेगा, फॉर रिएक्टेंट डिक्रीज करेगा, ये प्रोडक्ट के लिए और ये रिएक्टेंट के लिए जो है वो आपके पास में ग्राफ हुआ। सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, राइट। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आगे टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन की, विच आर ऑफ टू टाइप, एवरेज एंड द इंस्टेंटेनियस। सो keep watching. Yes, now we are talking about average rate of reaction. एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो आपके पास में क्या होता है। सो दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन, दिस इज द rate of reaction at a time interval that is del t. Rate of reaction at a interval of time वो आपके पास में एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बताया जाता है। वाइल इफ विल जस्ट टॉक अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर टाइम, तो वो इंस्टेंटेनियस जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को बताता है। सो हैव अ लुक, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, किसी टाइम इंटरवल पर होने वाला चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, राइट, और द टाइम इंटरवल इज del t here,
the change in concentration, that is the increase in the concentration of product or decrease in concentration of reactant at the time interval, that is del t time interval में होने वाला change, चाहे वो आप बात करें प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में, चाहे आप बात करें रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में, कॉन्सेंट्रेशन में कितना चेंज हो रहा है विद द टाइम इंटरवल, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए वो आपके पास में होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. It is denoted by the letter R, AV, R for rate of reaction, AV for average. This is equals to, चलिए मैं यहाँ पर जो है वो अगर कोई रिएक्शन लूँ तो प्लस R, this is reactant from this product P is formed for this particular reaction. आपके पास में जो रेट होगी वो क्या होगी, किस तरह से बताई जाएगी उसकी बात करें. The increase, plus sign shows the increase in the concentration of P with time interval t, right? Del P is the change in the concentration of the product है यहाँ पे. तो यहाँ पे कितना चेंज हो रहा है प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में विद द टाइम इंटरवल del t, और उसी को आप कह रहे हैं RAV, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. It can be also introduced by the term of reactant, और reactant के लिए हमें पता है change in concentration of reactant with the time interval t, ये आपके पास में रेट एवरेज रेट जो है वो होगी, but the sign will be minus. यहाँ अगर मैं बात करूँ del p वो क्या है, this is change in concentration of product P, while del R is change in concentration of reactant R, while del T is time interval here T2 minus T1, right? Okay. यहाँ अगर बात करूँ मैं प्लस और माइनस साइन की, तो प्लस माइनस साइन आपके पास में इंक्रीज and decrease in concentration of product and reactant respectively, इसी को शो कर रहे हैं, right? Positive sign shows the increasement in the concentration of product, while the negative sign shows the decreasement in the concentration of reactant as well. So this is about the average rate of reaction. चलिए मैं यहाँ पर इसको graphical representation जो है वो अगर दूँ, so have a look. This is time on the axis x, on the y axis कॉन्सेंट्रेशन ले लीजिए, चलेगा. अगर यहाँ पर जो है वो बात किया जाए अबाउट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रिएक्टेंट की केस की बात करूँ तो देखिए दिस इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दैट इज मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन, मैक्सिमम है यहाँ पे, ये जो है वो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन है. लीजिए एकदम मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन, ये आपके पास में जो है वो ग्राफ बनेगा. ओके, सपोज दैट दिस इज द टाइम t1, और t1 टाइम पे अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रही हूं, एट द टाइम t1 व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हियर, ये हमने माना R1 है, राइट. ओके, एट द टाइम t2 व्हेन द रिएक्शन रीचेस इज द टाइम t2, तो यहाँ पर इसके लिए जो रेट है वो हो गई है, सॉरी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हो गई है R2 एट द टाइम t2, राइट. ओके, सो दिस इज द चेंज इन concentration of reactant, this is the change of time
टाइम इंटरवल की बात कर रहे हैं, ठीक है। इस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कितना जो है वो कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है इन द रिएक्टेंट, दैट इज द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ये आपके पास में एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आएगा, जो आएगा डेल आर अपॉन डेल टी माइनस में, बिकॉज this is the reactant and the concentration of reactant during the reaction decreases here. That is why there is negative sign we will use. Okay, so this is all about the average rate of reaction. ऐसे ही अगर आप बात करना चाहें प्रोडक्ट के लिए, तो प्रोडक्ट के लिए आपके पास में जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा that will be something. This is the concentration ऑफ प्रोडक्ट एट इनिशियल, ये धीरे धीरे इंक्रीज करता जा रहा है। यहाँ अगर मैं बात करूँ एट द टाइम T1, ये आपके पास में कॉन्सेंट्रेशन ये था, दैट इज P1। एट द टाइम T2 कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेज हेयर, ये P2 हो गई। इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन अगर आप निकालना चाहें पॉजिटिव, बिकॉज देयर इज इंक्रीजमेंट, del P upon del T, time interval T1 and the T2 here. This is the time interval del T, while this is the change in concentration del P, and the positive sign shows the increase in the concentration of product. I hope आपको ये जो है वो समझ में आ गया होगा। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आपके पास में हमेशा एक टाइम इंटरवल के लिए चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन को पता किया जाता है। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। कीप वॉचिंग। यस, नेक्स्ट इज इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की हम बात कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। व्हाट इज इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन? दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर time, at a particular time or at a particular moment or at very small change in time. अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन को एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, एक पर्टिकुलर मोमेंट के लिए, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए निकाल रहे हैं, बहुत कम टाइम इंटरवल या बहुत कम चेंज इन टाइम के लिए रेट ऑफ रिएक्शन अगर डिटरमाइन किया जाए, देन दैट विल बी द इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। नाउ विल जस्ट टॉक अबाउट दिस कंडीशन। तो ये क्या होगा आपके पास में? दैट इज डेल टी टेंड्स टू 0, डेल टी टेंड्स टू 0। हम कह रहे हैं टाइम इंटरवल जो है वो नहीं होना चाहिए। एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, एक पर्टिकुलर मोमेंट के लिए जो है वो अगर रेट ऑफ रिएक्शन को निकाला जाए तो वो इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होता है। और यही आपके पास में क्या है? दिस इज द एक्चुअल रेट ऑफ रिएक्शन। दिस इज एक्चुअल रेट ऑफ रिएक्शन, ROR लिखा है मैंने इसको। दिस इज एक्चुअल रेट ऑफ रिएक्शन at a particular time, at a particular time, because आपको पता है टाइम के साथ साथ में यहाँ पर जो डिक्रीजमेंट या इंक्रीजमेंट था वो आपके पास में जो है वो एक पर्टिकुलर रेट से नहीं होता। अगर आप बात करें इनिशियल कंडीशन की तो देयर विल बी शार्प चेंज इन द इनिशियल कंडीशन, इन द कॉन्सेंट्रेशन में एकदम शार्प चेंज आता है इनिशियल कंडीशन में। वाइल मिडल जब आपके पास में रिएक्शन है, जब रिएक्शन एकदम मिड में पहुंच गई है, तब रिएक्शन जो है वो धीरे धीरे होती है, कॉन्सेंट्रेशन में चेंज धीरे धीरे आता है। जबकि एंड ऑफ द रिएक्शन आते आते रिएक्शन में
जो कॉन्सेंट्रेशन में जो चेंज है वो लगभग जो है वो खत्म सा हो जाता है, स्टेबल हो जाता है. सो we cannot determine the we cannot determine the actual rate of reaction by the average value. इसीलिए हम बात करेंगे अबाउट द इंस्टेंटेनियस, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पर, इस पर्टिकुलर टाइम पर जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन कितना है वो आपको बताएगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. सो if we'll just talk about the del t, it tends to 0 here. तो आप कह सकते हैं when the del t tends to 0 here, मतलब आपने लिमिट जो है वो लगा दी है, तो आप इसको जो है वो so it can be represented by the dt. पता होगा, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स को पता होगा, अगर आप बहुत स्मॉल चेंज को बता रहे हैं, वेरी वेरी स्मॉल चेंज, वो dt से जो है वो बताया जाता है, राइट. डेल टी एंड द dt से आप जो है वो वेरी स्मॉल चेंज को बता रहे हैं एट अ पर्टिकुलर टाइम. t पर अगर जो है वो बताना है तो डेल टी टेंड्स टू 0, सो इट विल बी शोन बाय द dt हेयर. dt से जो है वो बताया जाएगा. एंड द ROR रेट ऑफ रिएक्शन किसके लिए? इंस्टेंटेनियस, राइट. या मैं इसको लिख दूं R instantaneous, ROR for instantaneous, or rate of reaction instantaneous, that is equals to minus dc upon dt, plus minus dc upon dt. What is dc and the dt here? This is the very very small change in the concentration at the particular time t, या at a very small change in time dt, right. Plus minus again shows the increase and the decreasement in the concentration of product and reactant respectively. Positive sign का मतलब इंक्रीज है. किसमें इंक्रीज है? प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन हमेशा इंक्रीज होती है, जिसको पॉजिटिव साइन से बता रहे हैं. नेगेटिव साइन डिक्रीजमेंट को शो कर रही है इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, राइट. सो आर इंस्टेंटेनियस इज प्लस माइनस dc अपॉन dt. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डेल c अपॉन डेल t. ये वही है कॉन्सेंट्रेशन जो अब तक हम जो है वो पढ़ते हुए आए थे. कॉन्सेंट्रेशन में चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, राइट. प्लस माइनस डेल सी अपॉन डेल टी. चलिए इसके आप जो है वो लिमिट लगा दीजिए डेल टी की इज टेंड्स टू 0. इस तरह से भी जो है वो इसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, या आप ये वाला रिप्रेजेंटेशन देखिए, दिस इज मोर अप्रोप्रिएट. प्लस माइनस डी सी अपॉन डी टी, दैट इज instantaneous rate of reaction, while the average rate of reaction is plus minus del C upon del T. बस इतना सा डिफरेंस है इन दोनों में. ये आपके पास में डेल से शो हो रही है, ये डी से शो हो रही है. मीन्स दिस शोज द इंटरवल, टाइम इंटरवल में चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन को बता रहा है, while this shows the change in concentration at a particular time. So this is all about the instantaneous rate of reaction. इसके लिए ग्राफ की बात करते हैं. Wait for a second. Yes, graphical representation for this condition. What will be the graphical representation for this condition? Have a look. Y-axis, X-axis respectively, time on X-axis, concentration on Y-axis, right? Okay. चलिए प्रोडक्ट के केस के लिए बात किया जाए या रिएक्टेंट के केस के लिए बात किया जाए, तो प्रोडक्ट के लिए कुछ इस तरह से जो है वो ग्राफ आएगा, राइट. दिस इज फॉर प्रोडक्ट. For product, this will be the graphical representation. यार आगे बात करेंगे. I am plotting the graph for reactant here, time
on x-axis, concentration on y-axis for रिएक्टेंट हम बात कर रहे हैं जो कि डिक्रीजिंग ग्राफ जो है वो आता है, चलेगा। इफ वी जस्ट वांट टू कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर टाइम, तो देखिएगा आपको किसी भी पर्टिकुलर टाइम के लिए अगर रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो वहां पर पहले क्या किया जाता है, टेंजेंट जो है वो दिया जाता है, टेंजेंट जो है वो बनाया जाता है। टेंजेंट मीन्स पता होगा आपको कि किसी भी कर्व पर आपने एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो है, एक ऐसा प्लेन जो है वो ड्रॉ किया है जो कि क्या कर रहा है, फर्दर अगर इसको इंक्रीज किया जाए, आगे बढ़ाया जाए तो इट विल नॉट कट दिस, ये इस कर्व को कट नहीं करेगा, वो आपके पास में टेंजेंट होता है। तो हमने क्या किया, हमने स्लोप पे, इस कर्व के ऊपर, सॉरी इस कर्व पे एक टेंजेंट जो है वो बनाया है, ठीक है। एंड बाय नोटिसिंग द slope of the tangent we can measure the instantaneous rate of reaction, right, by measure the, तो यहाँ पर आपको to measure the r instantaneous ज़रूरत किसकी पड़ती है, एक टेंजेंट जो है वो बनाना पड़ता है और उस टेंजेंट के स्लोप से जो है वो पता किया जाता है r instantaneous, right, okay, have a look in this. If I'm just talking about the slope here, ये मान लीजिए आपके पास में कोई पॉइंट है, this is the point, this is the time t, ये टाइम t है, और इस t टाइम पर अगर जो है वो आपको इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो पता करनी है, कॉन्सेंट्रेशन अगर पता करनी है तो आपको पता क्या करना पड़ेगा, इसका जो है वो स्लोप पता करना पड़ेगा। एंड इफ विल जस्ट टॉक अबाउट द स्लोप दैट शोन बाय द टेन थीटा हेयर, स्लोप है टेन थीटा, और टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा हमारे पास में क्या होता है, दिस इज डेल वाई अपॉन डेल एक्स, ये हमारे पास में टेन थीटा है। स्लोप अगर आप इसका निकालें, आप जो है वो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स को ये चीज़ जो है वो समझ में आ रही होगी। देखिएगा हम बात कर रहे हैं, दिस इज द कर्व हेयर, कर्व लाइन है, ऐसे ही यहाँ बात कर लीजिए, ये आपके पास में कर्व है, इस कर्व पे अगर मैं जो है वो बात करूँ अबाउट दिस टेंजेंट, तो टेंजेंट एक ऐसी स्ट्रेट, एक ऐसी प्लेन जो है एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो कि किसी भी कर्व पर बनाई जाती है, जो कि इसको आगे अगर इंक्रीज करो तो को कट नहीं करेगी। यहाँ अगर आप इसके लिए जो है वो बात करें, दिस इज द टाइम t1, इस टाइम पे जो कॉन्सेंट्रेशन है, राइट। चलिए बात करें अगर हम यहाँ पर इस पॉइंट की, तो ये आपके पास में जो है वो t मान लीजिए और इस पर कॉन्सेंट्रेशन है c, राइट। हमें जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन जो है वो यहाँ पे पता करनी है, जो कि स्लोप के लिए जो है वो आप कैसे निकाल सकते हैं, या कर्व के लिए आप कैसे निकाल सकते हैं, बाय मेकिंग द टेंजेंट, टेंजेंट जो है वो बनाइए, टेंजेंट का जो है वो अगर आपने इसे आगे बढ़ाएं, ठीक है, आप इसको टेंजेंट को जो है वो आगे बढ़ाएं, इस पर जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जो आपके पास में एंगल मिलेगा, दिस इज द थीटा, ये थीटा एंगल है। मैं इसके लिए टेन थीटा की अगर वैल्यू की बात करूं तो वो डेल वाई अपॉन डेल एक्स आता है, राइट, ओके। सेम हेयर, यहाँ पर भी आप इसको जो है वो क्या करें, आगे बढ़ाएं, ये इसके साथ में जो पॉजिटिव स्लोप बना रहा है या जो पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बना रहा है, ये नहीं होगा, ये होगा, it will be this will be थीटा हेयर, राइट। ये थीटा है यहाँ पे, तो थीटा आपके पास में टेंजेंट के साथ में जो आपके पास में एंगल बन रहा है, दिस इज थीटा, टेन थीटा का वैल्यू डेल वाई अपॉन डेल एक्स होता है, ओके। चलिए आगे हम बात करते हैं यहाँ पे द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ अगर आप बात करें आर इंस्टेंटेनियस की, तो आर इंस्टेंटेनियस जो है वो यहाँ पे टेंजेंट स्लोप इज कैन बी डिटरमाइंड बाय द टेन थीटा, दैट इज डेल वाई अपॉन डेल एक्स जो है वो इसका वैल्यू आएगा। तो यहाँ बात करते हैं अबाउट सम एग्जाम्पल्स, और एग्जाम्पल्स की हेल्प से जो है वो हम इसके लिए इंस्टेंटेनियस एंड
एवरेज जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। कीप वॉचिंग। चलिए एग्जाम्पल समझने से पहले एक बार इसी ग्राफ में हम इसके जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। हैव अ लुक। मैं यहाँ पर जो है वो अगर एक प्लॉट जो है वो बनाना चाहूँ, दिस इज द स्लोप, ये आपने एक जो है वो टेंडेंट खींचा है, इसके ऊपर स्लोप आपको निकालना है, तो ये लीजिए आप इस तरह से स्लोप जो है वो निकाल सकते हैं। दिस इज द स्मॉल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, इसको जो है वो आपने DC से बताया है, while this is the small change in temperature that is denoted by the DT। तो what will be the slope here? slope होता है आपके पास में tan theta del y upon del x। देखिएगा del y on the y axis पे चेंज स्मॉल चेंज जो है वो कितना है DC। so this is DC upon change in the small change in the on the x-axis, small change on the x-axis, change in the time dt, dc अपॉन dt से आप जो है वो बता रहे हैं यहाँ पे, एंड द प्लस माइनस साइन वो आपके पास में आएगा कि अगर आप प्रोडक्ट के लिए ले रहे हैं या रिएक्टेंट के लिए ले रहे हैं। दिस इज द ग्राफ फॉर रिएक्टेंट। डिक्रीजमेंट है तो डिक्रीजमेंट को देखिएगा, स्लोप में डिक्रीजमेंट है तो यहाँ पर माइनस से जो है वो शो किया जाएगा। तो R इंस्टेंटेनियस इज इक्वल्स टू माइनस DC अपॉन DT। चलिए एक बार वापस हम इसको समझते हैं फॉर दिस ग्राफ। जिसको नहीं समझ में आया है वो यहाँ देखिएगा। दिस इज द कर्व। मैंने इस कर्व पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे कॉन्सेंट्रेशन पता करनी है एट द पर्टिकुलर टाइम, राइट। ओके, सो मैंने यहाँ पे एक टेंजेंट खींचा। ये टेंजेंट का जो है वो स्लोप अगर मैं बात करूँ तो इस लाइन को आगे बढ़ाइए। आगे बढ़ाने पर पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बन रहा है विद द टेंजेंट वो आपके पास में थीटा है। हैव अ लुक। विद द टेंजेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बन रहा है वो आपके पास में थीटा है। द टेन वैल्यू ऑफ द थीटा इज डेल वाई अपॉन डेल एक्स। ये फॉर्मूला होता है, आपको याद करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए, मैं अगर यहाँ पर जो है वो यहाँ से यहाँ एक एंगल जो है वो बात करूँ तो ये देखिए, दिस इज द स्मॉल चेंज in the temperature del T. This shows the small change in the concentration. It is DC, right? What will be the rate of reaction here for instantaneous? This is del y upon del x. tan theta का वैल्यू del y upon del x। y एक्सिस पे देखिए क्या है, डेल y का वैल्यू है DC अपॉन डेल x का वैल्यू है DT, राइट। द इंक्रीज इन द पॉजिटिव, द इंक्रीज इन द ग्राफ, सो द इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन, सो दिस शोज द पॉजिटिव साइन यार। दिस इज अबाउट द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बोथ। चलिए इसी के साथ में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कंप्लीट होता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द एग्जाम्पल्स हियर। यस प्लीज। नाउ विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स हम अपना एक नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज रेट एक्सप्रेशन। बाय द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल्स वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन एक्सप्रेस द रेट फॉर एनी ऑफ द रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन के लिए रेट को किस तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है उसकी बात करते हैं। हैव अ लुक। सपोज दैट हियर इज अ रिएक्शन इन विच A and B, these are two reactants which convert into two products C and D. A and B react together to form C and D। ये आपके पास में कोई भी केमिकल रिएक्शन है। इसका अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन बताना है तो वो आप कैसे बता सकते हैं वो बात कर रहे हैं। इसे बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये और आगे तक काम आने वाली है। जितने भी न्यूमेरिकल्स आप करेंगे सबको करने के लिए यही काम आएगा। सो कीप योर कॉन्सेंट्रेशन हियर। ROR। चलिए मैं पहले एवरेज रेट की बात करती हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की बात करती हूँ। दिस इज इक्वल्स टू, व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन? रेट ऑफ रिएक्शन इज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विथ टाइम आपके पास में होता है क्या?
रेट ऑफ रिएक्शन। चलिए अगर मैं बात करूं विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट देयर इज डिक्रीजमेंट इन द कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, इसलिए डिक्रीज को आप निगेटिव साइन से शो करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए जो था वो था डेल ए विथ द टाइम इंटरवल डेल टी, सो माइनस डेल ए अपॉन डेल टी, दिस इज द रेट। यही आपके पास में क्या है, रेट है, एवरेज रेट है, राइट, माइनस डेल ए डिवाइड बाय डेल टी। डेल ए क्या है, चलिए इसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट में लिखती हूँ, मोलर कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज द मोलर कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ए का चेंज इन मोलर कॉन्सेंट्रेशन, डेल टी, दिस इज द टाइम इंटरवल, टाइम टी के साथ में कितना चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है ए की, राइट, ओके। द रेट कैन बी फर्दर डिफाइंड विथ द टर्म ऑफ बी, बी के रिस्पेक्ट में भी तो रेट को जो है वो बताया जा सकता है, दिस इज अगेन रिएक्टेंट, मतलब यहाँ पे भी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा, निगेटिव साइन आएगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी with the respect of time, right, okay। आगे हम बात करें, रेट कैन बी फर्दर एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ सी, और सी के टर्म पे कैसे एक्सप्रेस करेंगे देखिएगा, दिस इज द प्रोडक्ट दिस टाइम, दिस इज प्रोडक्ट दिस टाइम एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस हेयर, और इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन को पॉजिटिव साइन से बताते हैं, राइट। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट to time, same as plus del t upon del d upon del t, तो ये है हमारे पास में एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इन द टर्म ऑफ ए बी सी एंड डी रेस्पेक्टिवली। आप इस तरह से रेट को बता सकते हैं। वापस समझिए करना क्या है, देखिए if we are showing the rate in the terms of reactant, नेगेटिव साइन लगाइए, अगर प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में रेट बता रहे हैं तो पॉजिटिव साइन लगाइए, क्लियर, ओके। अब आगे आपको क्या करना है, चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन को डेल से बताया जाता है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है, ये चीज आपने इक्विलिब्रियम में भी सीखी है इन चैप्टर नंबर 7 11th स्टैंडर्ड, वहाँ हम सीख के आते हैं। और चेंज इन टेम्परेचर चेंज इन टाइम जो है वो ये डेल टी है, तो ये आपके पास में प्लस माइनस डेल सी अपॉन डेल टी, हैव अ लुक, या तो प्लस फॉर प्रोडक्ट माइनस फॉर रिएक्टेंट, डेल ए डेल बी विद द रेस्पेक्ट विद टाइम, ये हमारे पास में हुआ एवरेज। आर इंस्टेंटेनियस की बात अगर मैं करूं तो वो क्या होगा, माइनस, अगेन सेम प्लस माइनस वही वाली चीज फॉलो होगी, निगेटिव साइन, डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, डी ए अपॉन डी टी, इट कैन बी इक्वल्स विथ माइनस डी बी अपॉन डी टी, it can be equal with plus dc upon dt or plus dd upon dt. So these are the expression किसके लिए, average rate and the instantaneous rate of reaction for the following reaction, right? चलिए next example की बात करते हैं। Yes, next example, suppose that A when react with the 2 moles of B, it will form 3 moles of C, right? Okay, it means मैंने यहाँ पे कुछ stoichiometric coefficients जो है वो लिए हैं, इनको हम किस तरह से करेंगे देखिएगा, RAV, that is average rate of reaction here. Now एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इन द टर्म ऑफ ए, आपने नेगेटिव साइन लेना है बिकॉज ए इज रिएक्टेंट एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस हेयर, माइनस डेल ए मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए
upon del T is RAV can be also determined in the respect with B, that is minus 1 by 2 molar concentration of change in del B, molar concentration है del T, 1 by 3 del C upon del T here, right? This is the average rate of reaction. However, the minus and the plus sign shows the increase and the decreasement of the reactant and product respectively. यहाँ आपने किया क्या है, ये change in the molar concentration, ठीक है, ए बी सी विथ रेस्पेक्ट टू द टाइम है, जबकि स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है वो आपके पास में यहाँ पे डिवाइड में हो जाते हैं. 1 मोल 1 by 1, चाहे मत लिखिए चाहे लिख दीजिए, नो इशू. 2 मोल्स है, डिवाइड पे गया 1 by 2 एंड 1 by 3 रिस्पेक्टिवली. सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस रिएक्शन. चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं. अमोनिया का फॉर्मेशन की बात करते हैं, वेयर 2 moles of N2 या N2 का एक ही ले लीजिए, 3 moles of H2 के साथ में 1 mole of nitrogen react with the 3 moles of hydrogen to form 2 moles of ammonia, right? Rate of reaction आपको यहाँ पे बताना है. बताइएगा किस तरह से जो है वो रेट ऑफ एक्सप्रेशन रिएक्शन को बताया जाएगा. अगर मैं बात करूँ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की, तो इट विल बी शोन बाय माइनस मोलर कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 with respect to time, negative sign, 1 by 3, change in molar concentration of hydrogen here with respect to time can be shown by 1 by 2 change in molar concentration of ammonia with respect to the time del T, right? This is the molar concentration of nitrogen divided by time, hydrogen एंड अमोनिया विद टाइम. साथ ही साथ में आपने जितने भी कोएफिशिएंट है उनको जो है वो डिवाइड में लिख दिया है. सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन हुआ. चलिए अगर मैं इसी के जगह जो है वो बात कर लूँ अबाउट द इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, आर इंस्टैंटेनियस की अगर बात किया जाए तो देखिएगा इट विल बी माइनस, सेम रहेगा, माइनस dN2 अपॉन dt माइनस 1 by 3 dH2 by dt plus 1 by 2 dNH3, this is NH3 by dt. This is the instantaneous rate for the following reaction. इस रिएक्शन के लिए बात कीजिएगा R इंस्टेंटेनियस की, it will be minus dA by dt. It can be further shown by minus half dB upon dt plus 1 by 3 dC upon dt. So this is the representation. I hope आपको समझ आ गया होगा. करना क्या है, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट. रिएक्टेंट है माइनस लगाइए, प्रोडक्ट है प्लस का साइन लगाइए. चेंज को बताना है आपको इंस्टैंटेनियस में. अगर पार्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं डी लीजिए, नहीं तो डेल लीजिए, ठीक है. डिवाइड बाय डी टी और द डेल टी. इतना ईजी है, बहुत ईजी है, बहुत सिंपल सा है. दिस इज द रिप्रेजेंटेशन हेयर फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस. मैंने दोनों ही रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन के बताए, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड द इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. और इसी के साथ में आज का हमारा ये जो लेक्चर है वो भी कंप्लीट होता है. इसके बाद हम आने वाली क्लास में इसी से रिलेटेड जो है वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को जो है वो डिस्कस करेंगे. आई होप आपको ये क्लास समझ आई होगी, आपने एंजॉय किया होगा.
If you enjoy this class, please like, share and subscribe it. तब तक के लिए keep watching, keep studying. Be at home, be safe. Thank you so much. Bye.